Okay, so we are going to start, and I hope everyone is going to implement parallelly with me. Okay, so I will suggest that you can implement parallelly with me, or if you want to implement later on your machines, then you can also prefer that. But I will recommend to do everything parallelly, so that in case if you are getting any error, any issues, you can solve right now. All right. So what I'll be doing is I'll be starting this program again, so that you all can start with me parallelly. But before that, you all need to start the Python IDLE. So what you have to search in your machine, IDLE. Please search. Do you have installed IDLE? You all might be having IDLE in your machine if Python is installed. All right. So once you will open IDLE, this is the Python default shell that I have, and you all also will be having this. So now this screen will be responsible to show the output. We are not going to write any code here. Okay, so we have to create a new file from here, file and new file. All right, we are going to simply create a new file first. So this is like a notepad to us. Here we are going to write the code. Later on, we'll switch to some VS Code or any other code editors, and machine learning session will be implemented on Google Colab. Okay, but for initial phases, we are going to use the Python IDLE simple. Now, let's start writing some basic code. Suppose I was importing a package known as random. So first of all, font is visible to all, or you want me to increase the font size? बाकी उधर भी आप लोग देख सकते हैं, उधर वाले. All right. All right. So now once we import the random package, so the program that we were creating was simply guess a number game. Okay. So using this example, few of the concepts will be cleared of loop, if else, break statement. These kind of things will be cleared with this example. So now we need a package random, and then we will create a variable CPU and write random dot rand int. So I just want to create a random number between 1 to 100. All right. So we'll be having a random number between 1 to 100. And now the user is going to guess the number. And also before executing the code, we have to save it. Extension we don't have to choose, just write the name of file. Before saving your file, remember, do not rename it as Python. फाइल का नाम पाइथन मत रखना, ठीक है? और फाइल के नेम में कोई स्पेसेस नहीं आने चाहिए, और फाइल का नाम पाइथन नहीं रखना है, कोई एक्सटेंशन नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली डॉट पी एक्सटेंशन के साथ सेव करेगा. एक सेकंड. You can save it on any location, any path. बेटर है सी ड्राइव में ना करके किसी और ड्राइव पे करो, डी ई या डेस्कटॉप पर करो, ज्यादा बेटर है. हाँ, डेस्कटॉप वगैरह पर कर सकते हो, बेटर है. डबल कोट्स में तो देखो कैसे भी लिख सकते हैं, वहां कोई ऐसा वो मैंडेट नहीं है. सॉरी सर, वो अपने आप रखते हैं. All right, done till here. Everyone done till here. All right. Now once you have this code, now this code will be executed only once. So if we execute this,
द शॉर्टकट इज F5. एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F5. अदरवाइज you have to click on, at the top you will see run and then run module. F5 हो सकता है F5 के साथ प्रेस करना पड़े, ये देख लेना. तो जो एरर आ रहे हैं पहले उनको देख लीजिए, क्या एरर है. देखो कोड, सीपीयू वेरिएबल बनाया आपने. All right, so now the next part is controls. All right, now let's proceed. After this, now we just want to compare that if user and CPU, the values are equal. So the comparison operators we have in Python double equals to, they are same in all the programmings. So I will simply write if CPU is double equals to user. So this is the condition, and now once you write condition, colon, enter. अब क्या होगा कि जब आप कॉलम एंटर करोगे यू विल सी योर कर्सर इज ब्लिंकिंग आफ्टर 4 स्पेसेस. मेक श्योर कि आपके पास वो अवेलेबल होंगे बाय डिफॉल्ट. कुछ करना नहीं है उसमें, एज इट इज जस्ट राइट योर कोड एंड देन प्रिंट else print all right. बिकॉज करली ब्रैकेट्स नहीं है तो कॉलम लिख कर एंटर कर. ये डॉट 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 में नहीं. and make sure the else will be written outside the if. The indentation must be same. देखो अभी बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की हुई है, फिर से सिंटेक्स एरर आएगा उनका. मेरा जो else है वो एक ब्लॉक के बाहर है, that we have to use backspace for it. All right, so is it clear till here? Everyone done? Now, after this, the next step is if you try to execute this program, it is going to execute only once. Okay, ये सिर्फ अभी एक बार चलने वाला है. So if I execute, enter your guess something. So it says invalid guess. Now what next? अब आगे क्या होना चाहिए? It has to execute continuously, and for that particular thing we have loop. All right. Can I have silence, everyone? Everyone, please be silent. I can't scold them. I'll be including in this. I'm just writing here. All right, everyone pay attention this side. Everyone pay attention. Silence. Energy लगानी पड़ेगी ना मेरे को ज़्यादा. All right. So now, when I talk about loops, now we know the requirement why exactly we need to perform the loop.
because this code is executed only once and now I have to re-execute it again and again until my guess is correct. All right, this is the objective. So what I have to do is we have to use the loop. So there are two different kind of loop. One is a for and one is a while. There is no do while. In other programming you have do while as well. Do while भी होता है हमारे पास. If else तो लगाया ना हमने. All right. So basically we need to use loop because it is executed only once. ये सिर्फ एक बार चल रहा है. हम चाहते हैं बार बार कंटिन्यूअसली चलता रहे जब तक कि सीपीयू और यूजर का गेस मैच नहीं हो जाता. ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोग्राम इतना पर्टिकुलर प्रोग्राम मुझे बार बार एग्जीक्यूट करते जाना है. ऑलराइट, तो दैट्स व्हाई वी नीड फॉर लूप और व्हाइल लूप. दोनों में से कोई एक लगाना है. अब ये डिसाइड कैसे करें कि फॉर लगाना है कि व्हाइल. So when we use a for loop, we know the range. हमें लूप लगाने की रेंज पता है. लूप कितनी बार चलाना है, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार. But there is a limitation. वो पता है. That's why you are going to use the for loop. But now in order to use while loop, there is a condition. जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलाते रहो. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टॉप. जैसे बेस्ट एग्जांपल आपने एक गेम खेला होगा सबवे सर्फर या टेंपल रन. तो प्लेयर भागता रहता है. कब तक? वो एंडलेस से भागता रहेगा जब तक कि वो प्लेयर आपका उसको कोई कैच नहीं कर लेता है, पकड़ नहीं लेता है, वो टकरा नहीं जाता किसी से. तब तक प्लेयर भागता रहेगा भागता रहेगा. तो इट्स इन अ व्हाइल लूप. वो किसमें है? एक व्हाइल लूप में, और लगातार चलते जा रहा है. सो नाउ वी नीड अ व्हाइल लूप ओवर हियर. हमें यहाँ पर एक व्हाइल लूप चाहिए होगा क्योंकि जब तक यूजर सही गेस ना कर दे तब तक लूप चलता रहना चाहिए. ऑलराइट, इट इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन. ऑलराइट, सो इट इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन. जब तक वो कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगी. कैसे? हम सी में सी प्लस प्लस में देते हैं. ठीक है, और एक्चुअली वहां पे भी जो हम कंडीशन देते हैं वो आई लेस देन वगैरह इस तरह की कंडीशन होती है. वो भी रेंज है, वो हमें पता है ना कंडीशन देनी क्या है. हमें तो एंडलेस चलाना है. तो इन पाइथन वो भी ऑप्शन नहीं है कंडीशन वाला. सो नाउ इन पाइथन हाउ वी आर गोइंग टू यूज अ लूप. आई विल सिंपली यूज अ कीवर्ड नोन एज व्हाइल, और इसके साथ लिखकर आते हैं एक कीवर्ड जिसका नाम है ट्रू. नाउ मेक श्योर कि आपके ट्रू का टी कैपिटल है. और यू कैन डू वन थिंग, टेक अ वेरिएबल गेम और इसमें आप ऐसा लिखकर आ सकते हो व्हाइल गेम एंड पुट दिस कोड इनसाइड व्हाइल लूप. तो सेलेक्ट करके टैब. तो ये क्या किया अभी हम लोगों ने? एक वेरिएबल लिया गेम, उसके अंदर डाल दिया ट्रू. ट्रू का टी कैपिटल है. ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने. एंड नाउ व्हाइल गेम का मतलब क्या हुआ? व्हाइल ट्रू. तो जब तक मेरा लूप ट्रू है तब तक वो चेक करता रहेगा. बट इट डोंट हैव टू चेक, इट हैज टू टेक इनपुट फर्स्ट. सो दिस इज द लूप पार्ट. तो क्या होगा? फर्स्ट इट विल टेक इनपुट, देन चेक्स द कंडीशन, देन अगेन टेक इनपुट, चेक द कंडीशन. कीप ऑन डूइंग दिस infinite. करेंगे सब कुछ होगा इसको धीरे धीरे. टैब 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 टैब. ऑलराइट, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं. सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया एक वेरिएबल गेम, उसको ट्रू सेट किया. व्हाइल गेम का मतलब व्हाइल ट्रू हो गया एक तरीके से. व्हाइल लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन और इनपुट को डाल दिया. और नाउ इफ यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस, तो यहां से हम लोग गेस करना शुरू कर देते हैं.
तो क्या होगा, we have to like make 100 guesses. ये इन्फिनिटली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो इसको कंट्रोल सी करके बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोल सी इसको बंद करने के लिए। तो अब होना ये चाहिए, अभी हमें ये नहीं पता कि हम गेस तो करेंगे। अब सपोज 1 से लेकर 100 तक नंबर है, तो हम 100 गेसेस तो कर ही सकते हैं। अब हो सकता है नंबर 99 सोचा है, हम 1 से शुरू कर देते हैं गेस करना, 1 2 3 4। तो बेटर इज कि आई विल गिव हिंट टू यूजर, हम यूजर को हिंट देंगे कि वो नंबर उस नंबर से बड़ा है कि छोटा है। ऑलराइट, so I will increase the conditions like this. L if CPU is greater than user. तो इसका मतलब हमने क्या किया है, you have guessed smaller number. L if CPU less than user. All right, so am I audible in this? All right, so let me write down the code again, what I was doing. So we need to use one else if. So I'm writing elif. So there is a elif keyword instead of else if. CPU is less than user, it means you have guessed greater number. Else if you have guessed smaller number. Else we can write
out of range. Okay. So now after this, what exactly is going to happen? We are simply giving a hint to user. हम लोग क्या कर रहे हैं? यूजर को एक हिंट दे रहे हैं कि जैसे ही क्योंकि देखो 1 से लेकर 100 तक नंबर गेस करना इज नॉट पॉसिबल, 100 गेसेस करने पड़ेंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग हिंट टू यूजर कि जो नंबर आप गेस कर रहे हो वो इन सीपीयू के नंबर से बड़ा है कि छोटा है. सो वी आर हैविंग अ डायरेक्शन टू गो, किस डायरेक्शन में हमें गेस करना है. ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. So we have to enter the guess. So let's start with 50 suppose. So it is saying you have guessed a greater number. इसका मतलब नंबर जो सीपीयू ने रैंडमली जनरेट किया है वो 50 से छोटा होगा. So let's go 30. 30 भी बड़ा है. 10 स्मॉलर है तो मतलब नंबर 10 to 30 होगा. 20. अब यहां पर देखते हैं. Now it is saying कि you have guessed the number. कि नंबर तो guess हो गया लेकिन उसके बाद भी it is asking to enter the number. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? It should stop the program. यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाना चाहिए. So there are two ways to do this. दो तरीके से कर सकते हैं. Either we can use a keyword known as break, or you can do one thing. Game is equals to false. All right. We can use any of this scenario right now. आप गेम वेरिएबल को या तो फॉल्स कर दो या लूप को ब्रेक कर दो. ओके. आपको किया सर आया नहीं और देखिए ना. या तो इसमें जाएगा या एनएफएल में जाएगा. लास्ट वाला तो नहीं. क्योंकि नंबर अगर 100 से ऊपर हुआ तो ग्रेटर वाले में चला जाएगा, सीपी ग्रेटर नहीं होगा. छोटा हुआ तो लेफ्ट वाले में चला जाएगा. ऊपर सब पार्ट है सब छोड़ के हटा नहीं सकते कोई जरूरत नहीं. फॉल्स करा सकते हैं या नहीं. अब क्योंकि गेम का रेट है अरे फॉल्स नहीं फॉल्स हो गया ना. तब तक चलेगी तब तक बैठ. All right, let's continue now. Are we done till here? Clear?
All right, so let's continue now. Okay, so now the next part is suppose now we have to include one more thing. क्या करना है कि अभी क्या यूजर को बहुत सारे चांसेस मिलते हैं नंबर गेस करने के लिए. पहले इसको अगर चलाकर देखते हैं. So if I execute this program, so it is asking you to guess a number. Suppose हमने 50 किया, 50 स्मॉलर है, 60 किया, 70, 80, 90, तो 90 इज ग्रेटर, तो मतलब नंबर 90 टू 80 है, 80 टू 90, तो 85 किया फिर, तो नाउ इट इज स्टॉप, अब रुक गया ये, परफेक्ट है बिल्कुल. नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई वांट टू गिव ओनली 5 चांसेस टू यूजर, कि 5 चांस में गेस करना है बस. तो इसके लिए we have to take a variable, let's name it as counter. All right, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है काउंटर. काउंटर की वैल्यू अभी 0 है. So whenever you are going to guess a number, counter will be incremented by 1. ठीक है, जब भी क्या होगा, काउंटर हमेशा आपका 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा whenever you are going to guess. And now once counter become 5, if counter becomes 5, so I'll print you lose the game, and then you can also print number was, जो भी नंबर था प्रिंट करके आ जाए. सो अकॉर्डिंग टू दिस कोड यू हैव ओनली 5 चांसेस नाउ. अब आपको सिर्फ 5 चांस में गेस करके आना. एंड ऑल्सो डू ब्रेक हियर. So I hope it's clear till here. So whatever number you will enter, first it will check in these if else, increment the counter, and now once counter is 5, it will break. बस start से जितना भी all right, so I hope clear till here, everyone. Okay, so now if you try to execute this code, you'll be having only 5 chances. So if I execute and also do one more thing, I am printing the counter as well कि कितने chances हो चुके हैं.
So now let's execute, and if I guess 50, counter is 1 क्योंकि 5 chances है हमारे पास. 50 is a smaller number. 70, 90, 80, 87. So number was 84. तो अब आपको सिर्फ 5 chances में guess करना है. All right. हाँ, we can mention. All right. So I hope it's clear. Everyone at the back, last, clear, done. मैंने यहाँ पे 5 पे ब्रेक कर दिया ना लूप. आप वैसे भी कर सकते हैं. या तो आप सही गेस कर लो 5 चांसेस में आपने सरफेस नहीं किया और 5 हो जाएंगे. मैच कराने के लिए देखो आप जो स्पेसिंग है. सर उसके करिए आपने प्रिंट किया है. आपने प्रिंट किया है काउंटर. हाँ वो इसके बाहर. इसके ऊपर चाहिए ना काउंटर. काउंटर साइड लगा देंगे. All right, so shall we proceed now? Okay. So this was a simple program just to make sure that you all are able to understand basic if else loop syntax in Python. There is a one simple mistake that you all are doing that is related to indentation. इस spacing में बहुत सारे लोग कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. ठीक है वो धीरे धीरे आएगा. You don't have to give
All right, now everyone pay attention this side. See, this was a simple example. ये हम लोगों का एक सिंपल एग्जांपल था जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ पाइथन. अब देखो, आप एक सिंपल एग्जांपल बनाने से कितनी सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली है. हमें इफ एल्स समझ आ गया, लूप लगाकर देख लिया है, वेरिएबल्स के बारे में समझ आ गया है, एक पैकेज भी इंपोर्ट करके देख लिया कैसे यूज करना है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी टिल हियर यू कैन आस्क, क्योंकि इसके बाद वाला जो एग्जांपल होगा वो आप साथ साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा एग्जांपल है. हाँ, एक फॉर लूप का बता देता हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एग्जांपल होगा, साथ साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. आई विल शेयर द कोड विद यू ऑल, ठीक है, वो आप लोग को शेयर हो जाएगा, आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर ही सकते हो. तो एक फॉर लूप का एग्जांपल और ले लेते हैं बस. सो आई विल प्रोसीड नाउ, आगे बढ़ते हैं. All right. So now, in order to understand the for loop, we are going to take one example of simple prime number. Let's say कि एक prime number का program मुझे बनाना है. All right. So what I have to do is I just need to create a program to check whether a given number is prime or not. All right. और prime number check करने की condition क्या होती है? Simple. कि it must be divisible by itself only. वो बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा. और हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से चेक करना, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को फॉर लूप चाहिए, यहाँ व्हाइल नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें पता है ना लूप कहां तक चलाना है. सो व्हाट आई विल डू इज फॉर आई इन रेंज. तो हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स देखो क्या होता है इस बार पाइथन के अंदर. आई हैव रिटन फॉर आई इन रेंज. आई को कहीं डिफाइन नहीं किया, ठीक है, यू डोंट हैव टू डिफाइन आई एनीवेयर. अब आप बताते हो लूप कहां से शुरू करनी है? 2 से. कहां तक जाना है? नम. अब ये ऑटोमेटिकली नम -1 तक चलाएगा. आपको बताना नहीं है कि 16 तक या 17 तक चलाना है, कहां तक चलाना है. बाय डिफॉल्ट इट विल एग्जीक्यूट टिल n-1. सो आई विल राइट हियर +1 करके. हाँ जी मैम. सॉरी. हाँ जी. जो नंबर यूजर एंटर करेगा, हम तो पर्टिकुलर नंबर चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है कि नहीं. ओके. नाउ आफ्टर दिस आई विल चेक इफ num मॉड्यूलस i डबल इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर चेकिंग इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द गिवन नंबर 2 3 4 5. लेट्स से हमारा एक नंबर लिया हुआ है हम लोगों ने. बस ये एग्जांपल की बात. ऑलराइट. सो आई हैव टेकन अ नम वेरिएबल. अब नम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, लेट्स एज्यूम मैं नम की वैल्यू डाल देता हूं 29. नाउ वी नो 29 इज अ प्राइम नंबर. 29 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा. तो लूप कहां से कहां तक चलने वाली है? 28 तक. 2 से स्टार्ट होगा और 28 तक जाएगा. अब इन केस अगर वो किसी से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो यहां पर डाल देते हैं नम और शुरू में लिख देते हैं एफ. और लूप को वहीं पर क्या करना पड़ेगा? ब्रेक. एल्स ऐसा लिख दें कि इट्स अ प्राइम नंबर. बिल्कुल वो बार बार प्रिंट करेगा. अब इसको अगर हम चलाकर देखना शुरू करें तो क्या होगा? इट इज सेइंग 29 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन कितनी बार?
जब तक लूप चल रहा है तब तक, लेकिन होना क्या चाहिए, एक बार आना चाहिए, या तो है प्राइम नंबर या नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, अगर ब्रेक कर देंगे एल्स को तो लूप एक ही बार चलेगी, या तो इसमें जाएगा या एल्स में जाएगा, उसके बाद चलेगा ही नहीं लूप हमारा। काउंटर कब तक चलेगा, तो बेसिकली जो सी सी प्लस प्लस वाले लोग होंगे यहाँ पे, सी वाले स्पेशली, वहां पे 10 लेते हैं, फ्लैग वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि वहां बूलियन डेटा टाइप नहीं होता। ओके, सो देयर इज अ बूलियन डेटा टाइप जिसमें ट्रू फॉल्स मेंटेन कर सकते हो आप। सो यू कैन टेक अ वेरिएबल लेट्स से प्राइम, उसको कर दिया ट्रू। ओके, और यहां जाकर सिर्फ इतना कर दिया मैंने उसको, प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स, दैट्स इट। मुझे एल्स की कोई जरूरत नहीं है यहां, आई विल सिंपली चेक लाइक दिस। All right, now it will be executed only once. फोर लूप चलेगा पहले पूरा, अगर फोर लूप के अंदर प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो गई तो इट मींस इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। देखो एक बार दोबारा समझ लेते हैं, नंबर इज 29, नंबर छोटा कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, नंबर 11 है, ठीक है। नाउ लूप कहां से कहां तक चलने वाला है, 2 से लेकर 10। तो ये चेक करेगा कि क्या 11 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 5 6 7 8 9 10 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो प्राइम की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया था प्राइम को एज अ ट्रू। अगर ये इसके अंदर चला गया तो प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, इसका मतलब इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल होगा सर, हाँ हाँ सर। स्क्वायर रूट तक, हाँ अंडर रूट तक भी चलता है, स्क्वायर रूट तक चलता है, वो बस इम्प्रोवाइजेशन के तरीके हैं, ठीक है, कि स्क्वायर रूट तक भी चल जाता है फिर वो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आर वी क्लियर विद दिस प्रोग्राम, हाँ जी बताइए, एनी डाउट एनी क्वेश्चन क्वेरीज बस बताइए भाई, सिंपल था, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, नहीं, तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं। सी नाउ द थिंग इज कि पाइथन के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो बाकी प्रोग्रामिंग्स में नहीं है, जिसके लिए हमारा कोड इतना खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक एल्स लगाया था और इसमें लिखा था, एक सेकेंड में, एक सेकेंड, पूरा तो होने दो, मैं शेयर करूंगा ना सारा कोड, ठीक है। तो देखो वापस आते हैं यहाँ पर, अब इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम थी कि इसका या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, और बार बार चलता रहेगा। हम चाहते थे कि एल्स वाला जो पार्ट है वो बस एक बार चले, अगर नंबर प्राइम नहीं है, सॉरी उल्टा हो गया ये, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड इट इज अ प्राइम नंबर। हाँ जी सर, वो डिफॉल्ट है सर, रेंज फंक्शन लगाया ना हमने, रेंज फंक्शन के दो आर्गुमेंट है, स्टार्ट एंड स्टॉप। लूप में आपने बता दिया स्टार्ट यहां से करो, स्टॉप आपने बता दिया ना, तो ऑटोमेटिकली -1 तक चलाएगा।
स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहीं से होगा, एंड होगा -1। जैसे आप सी लगाते हैं सर, सी फॉर लूप लेस देन चलाते हैं ना, तो लेस देन है तो -1 तक चलता है बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट, तो अब इस पार्ट में प्रॉब्लम ये थी कि इफ एल्स लगातार चलता रहता है, हम चाहते हैं इसको हर बार चले, लेकिन एल्स एक बार चले बस। तो पाइथन के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो ये है। हाँ जी, तो अभी ये थोड़ा नया है, ये एक्चुअली फॉर एल्स बोलते हैं इसको। हमेशा हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा है, इसके साथ एल्स होता है, लेकिन पाइथन के अंदर फॉर के साथ एल्स लगा हुआ है, तो फॉर लूप चलेगी। फॉर लूप अगर ब्रेक हो गई तो एल्स नहीं चलेगा। फॉर लूप चलेगा, एंड लेट्स से आपने नंबर डाला हुआ है 11, तो लूप चल गई कंप्लीट। तो इफ इसका मतलब एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स चलेगा। इफ तो हर बार चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इफ ब्रेक हो गया तो एल्स नहीं चलेगा। एट द एंड अगर फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ तो ही एल्स एग्जीक्यूट होगा। दिस इज ओनली प्रोवाइडेड इन पाइथन, ये सी सी प्लस प्लस जावा में नहीं होता ऐसा कि फॉर के साथ एल्स लगा दिया हमने। आउटसाइड दी फॉर लूप 11 जो भी लास्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि +1 तक तो वो आता ही है ना। हाँ जी, वो भी चल जाएगा। सो इज इट क्लियर? ठीक है जी, एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। वेल, एफ इज आउटसाइड द डबल कोट्स, वहां पर लिखा हुआ है। तो करली ये जो सिंटेक्स है ना, ये तभी सपोर्ट होगा जब शुरू में एफ लिखेंगे। तो उसके सपोर्ट के लिए एफ का मतलब है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, एफ स्ट्रिंग्स बोलते हैं इसको। और एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? आपने इसको बाहर नहीं निकाला ना? 45। बाहर निकाला हुआ है, तो अभी एक बार चलते हैं। अच्छा, नाउ इट्स अ टी ब्रेक आई गेस। आप लोगों का भी टी ब्रेक है, आफ्टर 15 मिनट्स विल गैदर एंड कंटिन्यू।